Hello students, welcome to you all in this my YouTube channel where I'm making a series for class 11th and 12th students covering the reduced syllabus of English. And I've started in class 12th poetry part. Here also in class 11th I'll start with poetry only. First I'm going to cover all the poems, then all the lessons of both the books. Then definitely I'll try to cover the grammar part as well, your writing skill part as well. So here I'm starting with a beautiful poem, a photograph. One thing I must tell you that in this video I'll be using both the languages. I'll try to speak in Hindi and English both because it's going to make convenient for most of the student. So though I'll be speaking more in English, but yes, I'll be using Hindi also. In this poem, photograph, it's a beautiful account of a love between a mother and a daughter. Whereas the daughter is missing her mother and she is just describing an incident of her mother's life which her mother used to miss a lot, which used to make her mother a lot of happy and kind of childish joy she used to get. So that incident is badly being remembered by this poetess, and through this account, through this incident, she is somewhere also explaining, also giving her feelings also, that how is she feeling now after losing her mother. So a mother in anybody's life is a kind of relationship which you normally don't forget by the time you are there in this world. Because the attachment, the bondage, the care, the love, the affection that you get from that relationship is nowhere else you are going to get. So this poem is actually explaining all this. So the central idea of the poem is this, that this is a clear-cut narration of motherly attachment of poetess, and how badly she is missing her mother, how badly she is missing her laughter, how badly she is missing her presence in her life. So let's start with the poem. The cardboard show me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. In this first stanza, right, poetess is talking about a cardboard. Cardboard is actually, she is referring to the photograph. In early days, we used to have photographs, on a cardboard and then covered with a glass, framed, and people used to keep it for a long time. Now things have changed. There are some, so many different kind of frames we can use. So different things have come. But earlier, this was the pattern. This used to be the pattern where people used to keep a glass frame on a cardboard, and picture was fixed in between both of them, and it used to be kept for a long time. So on a holiday, the poetess was doing something, looking for something, and all of a sudden she got that photograph, and that photograph actually took her to in a different world, where she started thinking about her mother's past. अब यहाँ पर होता ये है कि पोएटेस एक छुट्टी के दिन बैठी हैं और कुछ काम की चीज़ खोज रही होती हैं. उन्हें उसी खोजबीन में ये एक कार्डबोर्ड मिल जाता है, एक फ़ोटोग्राफ मिल जाता है. और फोटोग्राफ में क्या है, फ़ोटोग्राफ एक 3 बच्चियों का फ़ोटोग्राफ है जिसमें उनकी मदर सेंटर में है, बीइंग द एल्डेस्ट वन. 2 उनकी कज़िन हैं जो उनका हाथ पकड़े हुए हैं, और ये किसी सी बीच की फ़ोटो है जहाँ पर कि वो लोग छुट्टियाँ मनाने गए हुए हैं और वो फ़ोटो क्लिक की गई है. तो उसमें फर्स्ट स्टैंजा में एक इंट्रोडक्शन दिया है पोएटेस ने कि वो किस चीज़ की बात कर रही हैं, क्या है वो, और उसको बताया है कि इट इज़ अ फोटोग्राफ which has been clicked nearby a sea beach, and the 3 beautiful girls are there. Her mother is the eldest one. She is around 12 years of age, and besides her there are 2 cousins who are holding her hands. तो ये उन्होंने पहले स्टेंजा में एक इंट्रोडक्शन दिया है कि क्योंकि टाइटल ही फ़ोटोग्राफ है, आपकी पोइट्री का टाइटल ही फ़ोटोग्राफ है, तो उस फोटोग्राफ को समझाया है कि एक्चुअली फ़ोटोग्राफ कब का है, उसमें क्या है, उसका एक इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में. नाउ
All three stood still to smile through the hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born. अब कह रही ये जो इंसिडेंट है ये डेफिनेटली बहुत पुराना है, बिफोर द पोएटेस वॉज बॉर्न, इवन द हर मदर वॉज सम एट दैट टाइम सम अराउंड 12 years of age. सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुराना फ़ोटोग्राफ वो होगा. और उसके बारे में वो बता रही हैं कि जो फ़ोटोग्राफ लिया गया है तो तीनों बच्चियां स्माइल कर रही हैं. एक नेचुरल फ़ोटोग्राफ है, किसी ने पोज नहीं बनाया हुआ है. सी बीच है तो नेचुरली वहाँ पे एयर, एक विंड ब्लो कर रही है और उस एयर की वजह से उनके जो हेयर हैं वो चेहरे पर आ गए हैं, चेहरे पर बिखर गए हैं नेचुरली. और उस एक इमेजिनेशन करिए कि उन बालों के बीच से थोड़ी सी स्माइल विजिबल हो रही है. बाल चेहरे पे गिरे हुए हैं. तीनों बच्चियाँ अपने अंकल को देख रही हैं क्योंकि उनको पता है कि अंकल एक साइड से पिक्चर ले रहे हैं और उन बालों के बीच से स्माइल विजिबल हो रही है और उसी समय पिक्चर क्लिक कर ली गई है. सो दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ दैट पिक्चर, दैट फोटोग्राफ विच पोएटेस इज़ हैविंग इन हर हैंड and remembering about the past of her mother. And the sea, which appears to have changed less, was their terrible transient feat. अब उसमें एक चीज़ वो और बता रही हैं कि जो समुद्र है विच हैज़ बीन चेंजलेस, मतलब वो ये कहने का मतलब ये है कि समुद्र बदला नहीं है. समुद्र बदला नहीं मतलब जो सी बीच का एनवायरनमेंट है वो तब भी वही था और आज पोएटेस के टाइम में भी लगभग वही है. वहाँ कुछ बहुत चेंज हुआ नहीं है. सी बीच पे अगर आप जाएँ तो वहाँ बहुत से कुछ ऐसा चेंज होने वाला नहीं है. समुद्र का किनारा वही एनवायरनमेंट होता है, वही मौसम होता है, वही लहरें होती हैं, वही आवाज़ होती है. थोड़ा बहुत वहाँ पे अगर कुछ चेंज हो सकता है तो शॉप्स चेंज हो सकती हैं, कुछ नई चीज़ें आ सकती हैं, ये सारी चीज़ बिल्डिंग्स कुछ नई आ सकती हैं, मगर जो एनवायरनमेंट होता है ओवरऑल वो चेंज नहीं हुआ है. और इसमें एक वर्ड यूज़ किया है, वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीस्ट. ट्रांजिएंट मीन्स समथिंग विच इज़ देयर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. टेरिबली इवन शॉर्टर, बहुत कम समय के लिए जो फीट हैं उनको धो रही हैं. अब सोचने वाली बात यह है कि फीट को समय से कैसे जोड़ा जाएगा. एक्चुअली द पोएटेस इज टॉकिंग अबाउट द फूट मार्क्स विच आर बीइंग मेड ऑन द सी बीच. अभी देखो उन्होंने पहली लाइन में क्या कहा है, सेकंड लाइन में, व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, यानी बच्चियां जो हैं वो पैडलिंग, समुद्र के किनारे पैर चला रही हैं, मतलब सी बीच में पानी से खेल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं. आप कभी सी बीच गए हों तो आप पानी से पैरों से खिलवाड़ करते रहते हैं, चलते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं. जब आप उस खिलवाड़ में आगे पीछे होते रहते हैं तो आपके फूट मार्क्स भी वहाँ पर बनते जाते हैं. लेकिन वो फूट मार्क्स क्या होते हैं, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. दैट इज़ वाई द पोएटेस इज सेइंग टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, क्योंकि जो सी की लहरें हैं वो आ करके उसको बराबर धोती रहती हैं, ख़त्म करती रहती हैं. दैट्स व्हाट द पोएटेस इज सेइंग इन दिस लास्ट लाइन. Now the second stanza. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dress us for the beach. आप कह रही हैं कि जब इस पिक्चर को 20-30 साल बाद, यानी पोएटेस के पैदा होने के बाद, जब उनकी मदर कभी देखती थी, कभी नज़र पड़ जाती थी तो उन्हें बड़ी खुशी होती थी. She used to laugh and say, see Betty and Dolly. अपनी दोनों कज़िन्स का नाम लेकर के बोलती हैं, बेटी और डॉली को देखो कैसी लग रही हैं, कितनी फ़नी लग रही हैं. एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच. और अपने पेरेंट्स के लिए बोलते हैं. यहाँ पर ये जो मेंशन नहीं किया गया है, बट एक्चुअली द पोएटेस मदर इज़ रेफरिंग टू हर पेरेंट्स एंड हर कज़िन्स पेरेंट्स, कि कैसे उन्होंने उनको एक फ़नी वे में सी बीच को एंजॉय करने के लिए फ़नी ड्रेस पहना करके तैयार किया है. बिल्कुल एक ऐसे ड्रेस जिसे आज भी देख करके उसे हंसी आ जाती है, उसे एक खुशी महसूस होती है. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both rye with the labored ease of loss. अब यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, The sea beach holiday was her past, mine is her laughter, both rye, W-R-Y, rye. Rye means something ironic situation, यानी दो एक दूसरे से contradictory situations जहाँ पर मेंशन की जाए वहाँ ये वर्ड आता है. contradictory क्या है कि जो सी बीच हॉलीडे है वो अब उनकी मदर का पास्ट हो चुका है, अब वो मदर है नहीं उस सी बीच हॉलीडे को याद करने के लिए. और जो मदर उस वक्त याद करके जो इन्जॉय करती थी, उनका जो लाफ्टर होता था, जो खुशी होती थी, वो पोएटेस के लिए पास्ट हो चुका है. क्योंकि अभी वो नेक्स्ट स्टेंजा में आपको बताएंगी कि अब उनकी मदर इस वर्ल्ड में है नहीं. तो दोनों के लिए ये एक आयरॉनिक सिचुएशन है, एक दूसरे की चीज़ें पास्ट हो चुकी हैं. वो उसको अपने बचपन को याद नहीं कर सकती, वो अपने मदर की
मदर को अब मुस्कुराते हुए देख नहीं सकती। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। यहाँ पे लेबर्ड ईज ऑफ लॉस जो वर्ड किया गया है, यूज़ किया गया है कि एक बड़ी मुश्किल से एक खोने के दुख को उन्होंने महसूस किया है। यहाँ पे एक दो कंट्राडिक्टरी वर्ड यूज़ हो रहा है, लेबर्ड ईज़ ऑफ लॉस। एक तरफ ईज़ हो रहा है, दूसरी तरफ लेबर्ड यूज़ हो रहा है, यानी एक तरफ परिश्रम की बात हो रही है, एक तरफ आसानी की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीमोरन का इस्तेमाल किया है। ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच आपने सुनी होगी, जहाँ दो डिफरेंट वर्ड एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग रखते हैं और उनका एक जगह पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीमोरन का यूज़ किया है कि एक ना भूलने वाली चीज़ बड़े आसानी से भुला दी गई है दोनों के द्वारा। दोनों के मदर और द पोएटेस बोथ ऑफ देम हैव फॉरगॉटन दिस। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ द सर्कमस्टांसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट साइलेंसेस। अब लास्ट स्टैंजा में वो मेंशन कर रही हैं, बता रही हैं कि अब उनकी मदर इस दुनिया में नहीं है, शी इज़ नो मोर। एंड हाउ लॉन्ग शी हैज़ नॉट बीन हियर? ऑलमोस्ट एज मेनी एज ईयर दैट गर्ल लिव्ड। एक उन्होंने रेफरेंस दिया है, क्लियरली नहीं बताया कि मदर को गुजरे हुए कितना साल हो गया, एक रेफरेंस दिया है। द गर्ल दैट आई वॉज टॉकिंग इन द फर्स्ट पैराग्राफ, एग्जैक्टली टू हर एज द टाइम हैज़ गॉन बाय दैट माई मदर इज़ नो मोर। यानी अराउंड 12 years हैज़ गॉन बाय एंड हर मदर इज़ नो मोर। पिछले 12 साल हो चुके हैं लगभग और उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। और लास्ट में वो कह रही हैं, अंडर दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। नाउ द poetess is so sad, so depressed, so down that she is not in the position to say anything. Now she wanted to close this poem and only she is saying it silences. केवल एक सन्नाटा है, यादें हैं और वो उनमें थोड़ी देर के लिए डूब जाना चाहती हैं और कुछ करना नहीं चाहती हैं। शायद इसीलिए उन्होंने इस एंड पर इस पोएम को भी ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे एक वर्ड आया है साइलेंसेस। इसमें भी एक फेक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है, एलिटरेशन। एलिटरेशन में क्या होता है कि दो ऐसे वर्ड जिनका कि साउंड लगभग एक जैसा होता है, एक साथ यूज़ होता है। जैसे स्टूड स्टिल भी यहाँ पर यूज़ हुआ है। स्टूड स्टिल भी अनदर एग्जांपल ऑफ एलिटरेशन, जो हमारे यहाँ अनुप्रास अलंकार हिंदी में शायद बोलते हैं उसको, कनक कनकते स्वगुणी मादकता अधिकाय, उसमें जो उनका एक प्रोनंसिएशन है लगभग एक जैसा होता है। तो वैसा ही इसमें है एलिटरेशन में। आप और भी खोजिएगा, एलिटरेशन के एक दो यूज़ और भी हैं इसमें, अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है जिसकी मीनिंग आपको बताने की ज़रूरत है। ऑल एवरीथिंग इज़ सिंपल। फिर भी स्टिल इफ़ यू फील लाइक एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, you can put in the comment box. I'll reply to you. From my side, that's all. Have a good day. All the best. Thank you so much. And please, if you like my if you have really like the explanation and everything, please like my channel and share it with all your friends possible, and subscribe my channel also, and request your friends also to subscribe. Thank you so much.